इतने ही है क्या? हाँ बोलिए क्या? डेटा, हाँ अच्छा ओके। हाँ बता दूंगा, लेकिन अभी वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वेट नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे डेटा प्रोटेक्शन बिल। विंटर सेशन, जो अभी सेशन खत्म हुआ ना, it has gone through the committee, expert committee, and now Lok Sabha introduced and now sent to the joint house committee. ठीक है, एक select committee होती है और एक joint committee होती है. Select committee of a particular house and this is gone to joint committee of Lok Sabha and Rajya Sabha. जल्दी जल्दी जल्दी. लंच कर लिया? अच्छा पढ़ लीजिए, आई हैव अनदर क्लास जीटीबी नगर में इसके बाद, तो जल्दी चलते हैं. Now see the first article. पहले ऑपरेशन ट्विस्ट कर ले क्या? हाँ, आप लोगों का बहुत डिमांड है सुना, ऑपरेशन ट्विस्ट. पता नहीं क्या ट्विस्टिंग हो रही है. लेट्स सी ऑपरेशन ट्विस्ट. इजी टॉपिक है, इसमें क्या सोचना है. नाउ सी देख, ऑपरेशन ट्विस्ट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बाय द आरबीआई. नाउ दिस वाज द ऑपरेशन डन बाय यूएस फेडरल बैंक in 1960s or 61, ठीक है, 1960s, to stimulate the economy. After the Korean War, US economy was going through a rough patch, ठीक है, so they started to increase the liquidity in the market and they came with the operation twist. Now RBI is just following this operation done by the US Federal Reserve, जो वहाँ का RBI जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है. So now, why we need operation twist? पहला क्वेश्चन, why we need operation twist? ठीक है. And second, what do you mean by operation twist? ठीक है. And these two questions will clarify our doubts. ठीक है. So now first, why? Now see, we have RBI. RBI है कि नहीं? ठीक है. Now below the RBI we have number of banks, bank A, B, bank C and bank D, etc. ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं. Now आप लोगों ने रेपो रेट के बारे में सुना होगा, ठीक है, रेपो रेट. सो आरबीआई इशू रेपो रेट and now these banks can borrow money from RBI based on repo rate. कर सकते हैं, ठीक है. And then these banks supply the credit to their client, ठीक है. A client may be, you can say, entrepreneur, or you can see some businesses or industry, ठीक है, or you can say households, etc., etc. So here RBI reduces the RBI rate by around 135 basis point or percentage point or basic point, ठीक है, 135 basis point. But here from this RBI to bank, but bank to customer, there is no such
reduction. There is no such reduction. Here the reduction is 135 basis point. Here the reduction is only around 40 basis point. 40 basis point. Only 40 basis point. Why this? Now there is a mandatory linking of the lending rate by the bank with the repo rate, but still there is a problem in rate transmission. If RBI reduces the repo rate, these banks should reduce the lending rate to the client, and that's why we increase the liquidity in the market. अगर मार्केट में लिक्विडिटी देना है, सस्ते दर में लोन देना है, तो वी हैव टू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है. बट यहाँ पर डिक्रीज 135 बेसिक पॉइंट एंड हियर द रिडक्शन इज ओनली 40 बेसिस पॉइंट. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ हाई एनपीएज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है. जब हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, दैट मीन्स बिकॉज ऑफ हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स profitability of banks now reduced, ठीक है. So these banks are now compelled to increase the interest rate, and that's why they are not reducing the interest rate. इतना समझ में आया सभी को? पक्का? But economy is going through the slowdown, ठीक है. From 8.1% growth in last quarter of 2017-18, now it has reduced to 4.5% in second quarter of 1920. Slowdown. And to counter this slowdown, we have to increase the demand in the economy, ठीक है. To increase the demand, we also need liquidity in the market, ठीक है. To increase the liquidity, we have to decrease the interest rate in some way. So RBI is now following this ऑपरेशन ट्विस्ट का मतलब क्या होता है? मोल्ड करना, राइट. यहां देखो, ये ग्राफ समझो क्या होता है. यहां पर मैच्योरिटी, ठीक है, यहां पर इंटरेस्ट रेट और यील्ड मतलब बैंक को कितने, ठीक है. अब अगर यहां पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म रहेगा ना मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है. लेट्स सी 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, मोर देन 10 ईयर, ऐसे करके रहेगा. तो नो शॉर्टर द मैच्योरिटी पीरियड, हायर द इंटरेस्ट रेट होता है कि नहीं? होता है. शॉर्टर द मैच्योरिटी पीरियड, हायर द इंटरेस्ट रेट, एंड देन you go, when you increase the maturity period, the interest rate start reducing. ऐसे करके होगा इस तरीके से. एज ऑफ नाउ इंडिया में ये जो यील्ड ग्राफ है, कर्व है, वो इस तरीके का है. आरबीआई वांट टू मोल्ड दिस कर्व और ट्विस्ट दिस कर्व टू इन दिस वे. इंक्रीज हो रहा है ना, बट प्रोपोर्शन, ठीक है. अगर आप कोचिंग में एडमिशन लेते हो, ठीक है, 1 साल का लेते हो, लेट्स सी 1,25,000 फीस. अगर आप 2 साल का लेते हो तो लेट्स सी 1,75,000. प्रोपोर्शन इंक्रीज तो कम हुआ ना, बट इंक्रीज तो ऑफकोर्स होगा, ठीक है, कि 2 साल आप बोझ बने रहोगे, है ना. तो यहाँ पर विल हैव दिस काइंड ऑफ ग्राफ, बट आरबीआई वांट टू ट्विस्ट दिस लाइन टू दिस लेवल टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. तो जो हम लॉन्गर टर्म, अगर सपोज 10 इयर्स का लोन ले रहे हैं और 3 इयर्स का लोन ले रहे हैं, तो 6% है, तो यहाँ लेट्स सी 12% रहेगा, और लेट्स सी यू कैन से 8% रहेगा,
ठीक है. And now why reducing the longer term interest rate? Because investment increases, because this investment in infrastructure, automobile, in anywhere give result after some time. It may take 10 years, 20 years, 25 years to produce some result, right? अगर रोड बनाते हैं तो 5, 7, 8 साल लगता है कि नहीं? ठीक है. So now the long term interest rate, reducing the long term interest rate is something very much required. To reduce this rate, RBI launched ऑपरेशन ट्विस्ट. अब ऑपरेशन ट्विस्ट के थ्रू कैसे ये रिड्यूस कर रहा है वो हम देखते हैं. ठीक है. We have government, RBI and the बैंक. यहाँ पे नहीं, मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन कर रहा है. ठीक है. ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्योंकि हमें पैसा तो मार्केट में चाहिए ना. ठीक है. बैंक के थ्रू तो हम फेल हो गए. थ्रू द चैनल ऑफ बैंक वी फेल्ड, राइट? बिकॉज डिले इन ट्रांसमिशन ऑफ रेट. Delay in transmission of rate. If the reduction is happening in repo rate, same reduction are not happening in the end lending rate. ठीक है. So we failed in this process. So what RBI is doing? RBI is directly dealing with the market through the operations of open market operation, bond market जिसे बोलते हैं. ठीक है. Now RBI issue the bond in the name of government. करता है कि नहीं? The behalf of government, RBI issue the bond, and here RBI is now selling the bond or buying the bond. You can see long term bonds and medium term bonds. ठीक है. अगर यहाँ से बाई करेगा बॉन्ड, बॉन्ड तो इशू करके रखता है, बाई करेगा, आरबीआई पैसा देगा कि नहीं? सो अब पैसा यहाँ पर रहेगा. ठीक है. अब यहाँ पर मार्केट में लेट्स सी ऐप इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2, इंडस्ट्री 3, इस तरीके की इंडस्ट्रीज रहेगा. डिफरेंट है. सपोज स्टील है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये सारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है. दे वांट मनी, मनी बाय करते हैं कि नहीं? ठीक है. अब इसने क्या किया, इस कंपनी ने एक बॉन्ड इशू करा. ठीक है. अब वो बॉन्ड आरबीआई ने खरीदा और इसको पैसे दिए कि नहीं? अब ये इंडस्ट्री क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा कि नहीं? ठीक है. एंड इन दिस प्रोसेस आरबीआई विल रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट and try to label the lending interest rate with the repo rate. समझ रहे हो? नहीं समझ में क्या? सपोज आपने इंडस्ट्री खोल रखी है, अब आपको पैसा चाहिए. आप यहाँ पे गए बैंकिंग सिस्टम में, गए, आपने यहाँ पे इंटरेस्ट के लोन के लिए अप्लाई करा 10 साल के लिए. बट इस बैंक ने बोला कि 12% इंटरेस्ट रेट में हम देंगे आपको. ये तो बहुत हाई है. आपने सारे एस्टिमेट्स कैलकुलेट करे, आपने देखा कि जो हमारा प्रॉफिट होगा आफ्टर 6 इयर्स और 8 इयर्स, वो प्रॉफिट हमारे इंटरेस्ट पेमेंट से कम होगा कि नहीं? तो ये तो नॉन रिम्यूनरेटिव रहेगा आपके लिए. तो आपको कोई दूसरा चैनल रहेगा, आपको दूसरा चैनल से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट होल्ड में रख दोगे, आप वेट करोगे इंटरेस्ट रेट कम हो. अब हमारा इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो डाउन में है, तो आपको दूसरा रास्ता चाहिए पैसा के लिए. वो क्या किया? आरबीआई के पास. आरबीआई ने क्या किया? बॉन्ड मार्केट में इंटरवीन करा. ठीक. हाँ, ये गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ना, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और गवर्नमेंट पैसा देती भी है बॉन्ड के थ्रू. आरबीआई सेल करता है, परचेज करता है, इस तरीके की चीजें करता है कि नहीं? अब यहाँ पर हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट. ठीक है. अब आपने क्या करा? आरबीआई को एक बॉन्ड इशू करा. अब बॉन्ड इशू करोगे तो आरबीआई लेगी. जब आरबीआई बॉन्ड ले लेगी तो आरबीआई पैसा भी तो देगी उस लेंडिंग. सपोज 10 ईयर मेच्योरिटी वाला बॉन्ड. ठीक है. 6% में आपने इशू करा. आपने 20 ने बॉन्ड खरीद लिया. 10 ईयर्स की मेच्योरिटी के बाद सपोज आपको 10 लाख रुपए मिल गए. ठीक है. आफ्टर 10 ईयर्स
ईयरली 6% के इंटरेस्ट में आप इसको वापस पे कर दोगे। तो आपको यहाँ 12% मिल रहा था, बट आरबीआई के थ्रू, बॉन्ड मार्केट के थ्रू आपको 6% मिल गया। तो यहाँ से जब लिक्विडिटी बढ़ने लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट है मार्केट में वो कम होगा कि नहीं? ऑफ कोर्स, अगर सपोज इस कमरे में, ठीक है, मैं बैंक हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर इतने ये आरबीआई है, मैं बैंक, आप मेरे पास आए, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट में दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आप मेरे से पैसा नहीं लोगे, आप इनके पास जाओगे, पैसे 6% में लेने शुरू कर दिया, दूसरा आएगा इनके पास 6% में, तो ओवरऑल मार्केट में देखोगे कि इजिली अवेलेबल मनी है कि नहीं वहां से, ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होगा कि नहीं? Even if I am giving you a loan on 12% interest, but you are getting money from somewhere else at 6%. अब देखो, अब सपोज आपको पैसा 10 लाख मिल गया, आपने क्या करा, 8 लाख यूज करा, आपके पास भी 2 लाख एक्स्ट्रा है, आपने इससे कांटेक्ट करा, भाई पैसा चाहिए क्या, ठीक है, आपने 6.5% में इसको दे दिया, फिर भी इससे कम है कि नहीं? है कि नहीं? तो ओवरऑल मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होगा कि नहीं? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई थ्रू ऑपरेशन ट्विस्ट टू ओवरऑल मार्केट लेंडिंग रेट reducing and equaling with the repo rate, equating with the repo rate. अब समझ में आइए? नहीं आदित्य, अब नहीं आया तो पूछो ना, दोबारा बताते हैं। समझ में आइए? नहीं आया क्या? सब पढ़ लो, लास्ट में लिखा है 11th पेज में। हाँ, वेरी गुड, ऑब्जेक्टिव यही है। द ऑब्जेक्टिव हियर इज टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द मार्केट, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दैट increase in liquidity will happen if the market lending rate is equal to the repo rate. तो एनपीए वो डिक्लेयर होगा और उसको उसके जो एसेट्स होंगे, कोलैटरल जिसने दिया होगा वो जब्त होंगे, ठीक है। बाकी रेजोल्यूशन प्रोसेस होते हैं सारे, सब फॉलो करते हैं, फ्री में थोड़ी देगा। नहीं नहीं नहीं, कोलैटरल फ्री कैसे देगा? यू हैव टू पे बैक, ठीक है, बॉन्ड्स होते हैं उसमें कंडीशंस लगी होती हैं सारी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उस तरीके का होता है। बॉन्ड पेपर पूरा लिखा रहता है, बॉन्ड नहीं, बॉन्ड मतलब कि यू गॉट द डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें कंडीशन लिखी रहती है। जैसे कि अगर सपोज आप किसी कंपनी में काम करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो ना, उसमें पूरी कंडीशंस लिखी रहती है कि इतना इतना रहना है, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, और लास्ट में लिखा रहता है अगर इनमें वायलेशन होता है तो लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी इस तरीके से बॉन्ड होता है, ठीक है, लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। लीगल एक्शन में भी जानते हो क्या क्या हो सकता है, तो वो सारी चीजें रहती है। पूछना है कुछ? हाँ, तो अभी आते हैं, हाँ हम सही करते हैं ना। अभी एक और टॉपिक है, इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड हाउ वी कैन इंक्रीज। अभी देखते हैं कि बैंकिंग को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फूड इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म, ये जो है ना मोस्टली लॉन्ग टर्म में है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड क्रिएशन, इन सब पे फोकस है। फूड इन्फ्लेशन गॉट द सम डिफरेंट एस्पेक्ट्स। फूड इन्फ्लेशन इज मोर ऑफ अ सप्लाई प्रॉब्लम, ठीक है, सप्लाई प्रॉब्लम, एंड here we are dealing with the demand problems. And supply problem means, for example, जो अभी food inflation चल रहा है more than 10%, it is mainly because of rainfall और weather impact. जो अभी ऑनियन का प्रॉब्लम चल रहा है, अदर वेजिटेबल्स कॉस्टली है, ठीक है, तो मोस्टली इज अबाउट सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स, ठीक है, सप्लाई साइड प्रॉब्लम, एंड दोज फूड इन्फ्लेशन कांट बी हैंडल्ड बाय द रेपो रेट, ध्यान रखना, कांट बी हैंडल्ड बाय द रेपो रेट। दिस कैन बी हैंडल्ड ओनली थ्रू द रिफॉर्म इन एग्रीकल्चरल मार्केट, reform in agricultural market, and also reform in agriculture technology, structural reform they are required.
हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं, वो भी तो कोलेटरल है, शेयर रख सकती है, पर अगर नहीं दोगे तो अगर जितना शेयर होगा वो आरबीआई के पास चला जाएगा, आरबीआई कैन सेल दो शेयर्स। मोस्टली शेयर्स ही होते हैं, कोलेटरल मतलब ही है वो शेयर। जैसे किसान आदमी जाता है तो उसका जमीन रख लेता है, हम ये शेयर रखते हैं। दो तीन तरीके होते हैं, कई बार शेयर सेल कर देते हो, कई बार आप ऑनरशिप ले लेते हो, इस तरीके से। भारत बॉन्ड, हाँ वो भी बॉन्ड के लिए है। भारत 2020 है तो उसका अबाउट पीएसयूज के बॉन्ड्स के लिए है, बॉन्ड बॉन्ड मार्केट से ही आता है वो, उसके अंदर आएगा, उसी उसी तरीके से सेल करेंगे। Operator twist is all about twisting this graph, reducing the long term rates, ठीक है, reducing the क्या चला गया, ग्राफ के नीचे इधर, हाँ फ्लक्चुएशंस होते रहता है, बट यू स्टैंडर्ड आप याद रखो एग्जाम में लिखने के लिए। अरे दीज आर फ्लक्चुएशन, 4 दिन का फ्लक्चुएशन, जैसे मंडे को किया, नहीं नहीं, जैसे आप मेजर करते हो, प्लॉट मेजर करते हो, ये ऐसा नहीं कि बैंक का रेट जो रहेगा वो पूरा 10 साल तक लिए सेम रहेगा, दीज आर बेस्ड ऑन द रेट्स, और ये फ्लक्चुएट करते रहेगा। हाँ हाँ, बट ये फ्लक्चुएट, जैसे इस क्वार्टर में ये ग्राफ बन रहा है, अगले क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएंगे, फिर दूसरा ग्राफ बनेगा, ठीक है, बट आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखना है। हाँ हम्म, अभी इंडिया रिसेशन में नहीं है, विल नॉट गो डाउन। रिसेशन का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूअस 2 क्वार्टर्स में निगेटिव ग्रोथ रेट होना चाहिए, बट इंडिया इज स्टिल पॉजिटिव 4.5%, राइट। अरे उनको बोलने दो ना, आपको पास जो डेटा है वही यूज करो। इंडिया इज नॉट इन रिसेशन, इंडिया इज इन स्टैगफ्लेशन। इंडिया कांट गो, इट्स डेवलपिंग कंट्री। हाँ, द रिसेशन प्रॉब्लम जनरली कम्स इन डेवलप्ड कंट्री व्हेन द मार्केट इज नाउ सैचुरेटेड, ठीक है, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पर रिसेशन जाना के चांसेस नहीं है। स्टैगफ्लेशन एंड यू स्लो डाउन विल बी देयर, हाई इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन, वो चीज़ें रहेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, बट स्टिल विल स्टार्ट गोइंग 4-5% मिनिमम है, इससे ऊपर ही जाना है, इससे नीचे हम गिर नहीं सकते। अभी आने दो, थोड़ा दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। देयर आर 2 काइंड ऑफ जो डिबेट्स चल रही है, रीजन ऑफ स्लो डाउन, काइंड ऑफ स्लो डाउन, वन पीपल कंसिडर इट इज साइक्लिक स्लो डाउन, सम कंसिडर इट इज स्ट्रक्चरल। तो अगर इट इज साइक्लिक then it will rebound quickly, maybe by next year, and if it is structural then it will take some time। अभी देखते हैं, क्योंकि structural reforms take time to produce some results, right, और इंडिया में structural reforms होने में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। अगर हम लेबर रिफॉर्म करते हैं तो लेबर यूनियन आ जाता है एंड कांग्रेस ऑन द फ्रंट, ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म करते हैं तो अगेन प्रॉब्लम्स आती है बहुत सारी, ये चीजें हैं। जैसे पढ़ लो, ऑपरेशन ट्विस्ट a name given to monetary policy tool that US Federal Reserve had initiated to influence the prevailing rate of interest in the market. A tool essentially aims at changing the shape of yield curve, जो आपका ब्रैकेट में बना हुआ, ठीक है, इस मोर ऑफ अ फ्लैटनिंग द कर्व, लिखा ना लास्ट लाइन में, दो ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई ट्राइज टू फ्लैटन द यील्ड कर्व, जो लास्ट वाला है ये, दिस मोर ऑफ अ फ्लैटनिंग, दिस वन, यहां पर फ्लैटन करना।